Hello students, so today we will discuss the next part of chapter number 7. Clear, in the previous part we have discussed about the center of mass, motion of center of mass. So in this part we have to discuss about the rotational motion. The first topic is here angular velocity. This is not new to for you. We have already discussed in the previous part, chapter number 3rd and chapter number 4th. We have discussed about the circular motion. So first topic is here, that is angular velocity. So angular velocity is represented by omega or denoted by omega. It is equal to the angular displacement per unit time. Clear? It is represented by omega. This is theta. Theta is represent the angular displacement, and that it is an angle, so it is measured in radian. The unit of omega is comes out to be radian per second. For example, if I take this a circular object, sorry, this is a circular path. If object A is here, after some time object reach to the point B. So this angle is known as displacement. So this displacement is known as angular displacement. So the ratio of the angular displacement to the time taken is known as angular velocity. It is represented by omega, and this omega can be written as, that is, theta upon t. If this displacement is small, displacement is small, so we can also write omega is equal to d theta upon में dt. Clear? Or this is change in the position or the small displacement. So the next topic is yours, the relation between the linear and angular displacement. So before going to this topic, first we have to discuss the diagram here. So first there is an object which is at point A. After some time the object reached to the point B. So it subscribe an angle d theta at the center, which is known as angular displacement. And the object reached to the point A to B. So this is its linear displacement, which is represented by dr, and r is the radius of this path. So we already discussed in the previous part that theta is equal to L by r. Clear? So here theta is d theta and L is length of the arc, which is equal to dr, and r is the radius. So we find here dr. So dr comes out to be r into d theta. So divide by dt both side or differentiate by dt. So here comes out dr by dt is equal to r into d theta by dt. So as previously we written here in the upper part, we have written here ki omega is equal to d theta upon dt. So in place of d theta upon dt we can write omega and dr upon dt. So dr is the displacement. So dr is the displacement upon my time, which is known as velocity. So v is equal to r omega. This is also we have done in a previous वीडियो, वी हैव डिस्कस इट इन द प्रीवियस चैप्टर, हमने इसको किया हुआ है. ठीक है, तो अब आगे चलते हैं. एंगुलर एक्सेलरेशन, ये भी हमने पहले किया हुआ है. तो एंगुलर एक्सेलरेशन किससे जुड़ी है? एंगुलर वेलोसिटी से जुड़ी हुई है. व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन. सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा. इफ प्रीवियसली एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, आफ्टर सम टाइम इट इज ओमेगा 2. सो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय t2 minus t1. So it can be d omega by dt. So as previously we have written here, the omega is equal to d theta upon dt. So if we put here the value of omega, here we put the value of omega, omega value का d theta upon dt, तो इसे become ये हम लिखा ओमेगा की जगह रख दिया d theta upon dt. So ये बनेगा d square theta upon dt square. So its unit of alpha means angular acceleration is radian per second square. So ये जो topic थे आपके, this is not new, it is a old topic which we have already discussed in the previous part. The new topic which we have discussed today is the next topic. This topic is known as torque. So torque हमने पहले पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम के केस में, आपको बताया था टॉर्क क्या होता है कि when an body is moving in a circular path, if the force act on the body and that force is to be the torque. So first we have discussed what is torque. Torque की definition क्या होगी? So it is the product of the magnitude of the force acting on a particle and perpendicular distance of application of force from the axis of rotation. तो अगर मैं कह देता हूं कि ये कोई ए पार्टिकल है, इसके ऊपर ये फोर्स एफ लग रहा है, तो किसका प्रोडक्ट है ये? इस फोर्स का और क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो इस पार्टिकल के जहां पे फोर्स एक्ट करा उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आपका ये होगा, दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस. So if it write in the vector form, the torque comes out to be force into a perpendicular distance of the particle from axis of rotation. So if you want to write in vector form, so torque is equal to F into me R. Clear? This is in vector form.
सो इफ यू वांट टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो ये बन जाता है आपका टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर एफ साइन थीटा, वो यहाँ से निकालना हमने। तो अगर ये एंगल थीटा है तो मेरे को ये चाहिए ए बी, तो यहाँ से निकाल लूंगा मैं साइन थीटा। तो जो साइन थीटा आपका क्या आता है, दैट इज परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में हाइपोटेनियस, जो आपका क्या है ओ है। तो जो ए बी की वैल्यू यहाँ पे आएगी वो क्या आएगी, ओ ए साइन थीटा आएगी। क्लियर। तो अब यहाँ से जब मैं ए बी निकालता हूँ तो ओ ए आपका क्या है, दिस इज आर, तो यहाँ बन जाएगा आर साइन थीटा। तो जो ए बी का था वो था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे जब निकाल लेंगे तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आपका पहले यहाँ बनेगा टॉर्क, टॉर्क क्या होता है आपका फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखूंगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ पे ए बी है, तो जो ए बी की वैल्यू वो आपकी क्या है आर साइन थीटा, तो जो आपका एफ आ गया वो आपका आ गया आर साइन थीटा। सो जो पूरा इसको लिखेंगे बन जाएगा आर एफ साइन थीटा। तो ये आपका क्या टॉर्क, तो टॉर्क है क्या आपका, टॉर्क का प्रोडक्ट किसका, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कि जहां पे फोर्स, अगर इस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है तो इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो ये आपका टॉपिक था टॉर्क। अब जो नेक्स्ट हमने देखना है कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, मींस मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। सो एज वी हैव रिटन प्रीवियसली कि टॉर्क जो आपका है वो है आर इंटू में एफ साइन थीटा। तो इफ थीटा इज जीरो, अगर थीटा आपका क्या होगा, जीरो होगा, तो मैंने भी पुट हियर थीटा जीरो, तो साइन जीरो जीरो, सो द टॉर्क कम्स आउट टू बी मिनिमम। इफ थीटा इज योर 90, तो टॉर्क कम्स आउट टू बी टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर एफ साइन थीटा, साइन 90 मीन्स 1, सो टॉर्क कम्स आउट टू बी आर एफ। सो मीन्स व्हेन द फोर्स is or means application of force and the when application of force on the particle and axis of rotation से जो फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो 90 डिग्री पे होगी, तब आपका टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर वो अलोंग द है, मतलब अलोंग द सेम डायरेक्शन है, तो टॉर्क आपका क्या होगा, मिनिमम होगा। नेक्स्ट आपका आता है एंगुलर मोमेंटम, ये भी कोई नया टॉपिक नहीं, पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं इसको। सो इट इज द प्रोडक्ट फॉर लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिंपल सी बात है, कोई पार्टिकल था, ये रोटेट कर रहा है इन सर्कुलर पाथ में, तो इसकी जो लीनियर मोमेंटम है वो p है। क्लियर। और इसका जो डिस्टेंस एक्सिस रोटेशन से r है, तो जो l होगा वो आपका होगा p इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या r है, तो जो l की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी पी आर या आर पी। बट इफ यू वांट टू फाइंड राइट, इफ यू वांट टू राइट इट इन द मैग्नीट्यूड, इफ हम इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं तो जो एल आपका होगा वो होगा आर पी साइन थीटा, एज प्रीवियसली वी हैव रिटन इन केस ऑफ टॉर्क। तो ये थी आपकी एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम होती है एल, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड आर। पी लीनियर मोमेंटम है, आर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में चलेंगे तो ये वेक्टर की फॉर्म में रहेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में बन जाएगा आर पी साइन थीटा। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, दैट इज 2 मार्क्स क्वेश्चन और 3 मार्क्स क्वेश्चन इन योर एग्जाम। तो टॉपिक ये कहता है आपको फाइंड द रिलेशन बिटवीन द टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो या कई बार कहता है प्रूव करो टो इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी। तो ये हमने प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए कोई मुश्किल या सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो कैसे करेंगे। सो एज वी नो दैट कि जो एल है वो आपका आर इंटू पी है, तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया बोथ साइड, मीन्स डी बाई डी टी। तो यहाँ पे डी टी आ गया, यहाँ पे भी डी टी लिख दिया हमने, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे इसको हम। जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे दो हैं बेटा, एक आर है और एक पी है। तो पहले हम क्या करेंगे, पी को कांस्टेंट मान लेंगे, आर को डिफरेंशिएट कर दिया। दूसरे केस में आर को कांस्टेंट मान लिया, पी को डिफरेंशिएट कर दिया। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो डी आर अपॉन डी टी इंटू में पी और आर इंटू डी पी अपॉन डी। हमें पता है कि डी आर अपॉन डी टी है, उसको वेलोसिटी कहते हैं, और डीपी अपॉन डी टी मींस चेंज इन मोमेंटम पर इन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम पर इन टाइम ये है न्यूटन का सेकंड लॉ, जिसके इक्वल है फोर्स के इक्वल है। सो आफ्टर दैट विल पुट द वैल्यू हियर। तो हियर कम्स आउट टू बी एफ इन प्लेस ऑफ डी बाई डी टी, एफ आ गया इन प्लेस ऑफ डी आर अपॉन डी टी, वहां पे वी आ गया। तो यहां तक हम पहुंच गए। उसके बाद हमें पता है कि जो पी होता है दैट इज मोमेंटम, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्लियर। अब मास को हमने बाहर लिखे तो यहाँ पे आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, वी क्रॉस वी। तो वी क्रॉस वी मीन्स दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होता है वी, दैट इज इफ ए क्रॉस बी, उसको हम लिखते हैं क्या, ए क्रॉस बी को हम लिखते हैं ए बी साइन थीटा। क्लियर। अगर ये दोनों ही सेम वेक्टर तो ए इंटू ए, अगर दोनों सेम वेक्टर दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे, इफ बोथ आर लाई ऑन ईच अदर, तो जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा। क्लियर। तो मीन्स दो सेम वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। तो अगर दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो मीन्स इस पूरी टर्म को हम 0 कर देंगे। अगर ये पूरा 0 हो गया तो आपका डी एल बाई डी टी आपका आ गया आर एफ। ठीक है। अब जो आर एफ हम पीछे लिख के हैं कि आर इंटू एफ, तो वो क्या था, टॉर्क था आपका। क्लियर। तो जो आर टॉर्क क्या था आपका, आर इंटू में एफ, तो यह क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ, तो उसको हम क्या लिख रहे थे, टॉर्क लिख रहे थे। क्लियर। तो इन प्लेस ऑफ आर एफ वी विल राइट हियर टॉर्क। सो जो हमारा टॉर्क किसके इक्वल आ गया, वो आ गया आपका डी एल अपॉन dt। दिस इज योर 3 मार्क्स क्वेश्चन बनता है पेपर में, रिलेशन बिटवीन द टॉर्क एंड द
एंगुलर मोमेंटम। तो जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। हमने टॉर्क की बात कर ली, हमने मोमेंटम को पढ़ लिया, एंगुलर मोमेंटम को। अब हमने इसको इंप्लीमेंट करना सिस्टम पार्टिकल मीन्स जहाँ पे एक से ज़्यादा पार्टिकल होंगे, और सिंपली इसको दूसरी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, पहले 2-4 लाइनें लिखेंगे, उसको समझना, फिर आपके चलते हैं। सो कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल, लेट L1, L2, L3 up to Ln be the angular momentum of the particle of system respectively about the origin. Therefore angular momentum of system of particle about O is given by, हमने क्या लिया कि there are many particle like we say that there is a n particle. so हमने क्या किया, एक सिस्टम ले लिया, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे कि ये आपके डिफरेंट पार्टिकल हैं, एक यहाँ पे है, क्लियर, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। सो इफ दिस इज योर फर्स्ट पार्टिकल, ये आपका पहला पार्टिकल है, यहाँ से ये दूसरा पार्टिकल है, ये तीसरा पार्टिकल है, और ऐसे ही आपका nth पार्टिकल है। क्लियर। और इनका जो पोजीशन वेक्टर है वो r1, r2, r3, और ये क्या हो गया आपका rn हो गया रिस्पेक्टिव देयर पोजीशन वेक्टर। एंड L1, L2, L3 एंड Ln बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल। क्लियर। और ये सारे पार्टिकल किसके अराउंड घूम रहे हैं, दैट आर रोटेटिंग अराउंड द ओरिजिन, की दीज आर रोटेटिंग अराउंड द ओरिजिन। तो अगर ओरिजिन के अराउंड रोटेट करेंगे तो जो इनकी टोटल मोमेंटम होगी उसको मैं लिख देता हूँ एल। एल इज देयर टोटल एंगुलर मोमेंटम। सो दिस इज द सम ऑफ, किसका सम होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू कहाँ तक होगा, Ln तक होगा। क्लियर। इनके ऊपर वेक्टर लगाना जरूरी है बेटा, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर होती है आपकी। क्लियर। उसके बाद हम आगे चलते हैं। सो ये आपकी टोटल मोमेंटम है लिख दी। सो अगर हमें पता है कि यहाँ पे आपके क्या n पार्टिकल हैं, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ इन दी फॉर्म समेशन, समेशन i अप्रोचेस 1 to n, इसको लिख दिया मैंने Li। और वी नो दैट कि जो आपकी L होता है मीन्स एंगुलर मोमेंटम जो होती है दैट इज L वो आपका होता है R इंटू में P। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से। तो जब इसको मैं R इंटू पी लिखूँ तो यहाँ पे आ जाएगा समेशन i अप्रोचेस 1 to n, यहाँ पे आ जाएगा Ri इंटू में क्रॉस Pi। तो ये लिख दी मैंने, दिस इज टोटल मोमेंटम ड्यू टू ऑल दीज पार्टिकल्स। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, हमने कहते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड, हमने इसको कर दिया डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे आपका बन गया दैट इज dl अपॉन dt इज इक्वल टू समेशन i1 to n ri एस टी रहेगा आपका, ri लिखना लिख लो, नहीं आप इसको ऐसे सिंपल लिख लो dli अपॉन में dt। क्लियर। ये हमने इसको समेशन की फॉर्म में लिख लिया। तो एज वी नो दैट कि जो आपका dl अपॉन dt होता है, जो हम पीछे लिख के आए थे dl अपॉन dt, तो ये आपका होता है टॉर्क, हम लिख के आए थे टॉर्क यहाँ पे। ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ से लिखना चाहते हैं इसको कि ये तो बेटा टोटल टॉर्क, ठीक है, टोटल टॉर्क जो एक्ट करेगा मीन्स ये जो है टोटल मोमेंटम आएगी इसकी, ये उन सभी पार्टिकल की वजह से मोमेंटम है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ कि समेशन i अप्रोचेस 1 to n विच इज इक्वल टू, सॉरी, इन देयर इज dli अपॉन में dt है, इसको मैंने लिख दिया समेशन i1 to n, इसको दिया टो आई मीन्स टॉर्क। क्लियर। और इस टॉर्क को मैं लिख दिया नेट, कि ये नेट टॉर्क है आपका। तो जो यहाँ से dl अपॉन dt था, इसकी वैल्यू को हमने लिख दिया यहाँ पे समेशन i अप्रोचेस 1 to n, और ये बन गया टो आई नेट, ये पूरा नेट टॉर्क जो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं कि कोई भी सिस्टम है अगर वहां पे पार्टिकल है, सो देयर एग्जिस्ट टू फोर्स, एक तो एक्सटर्नल फोर्स होता है, एक इंटरनल फोर्स होता है। इंटरनल फोर्स ड्यू टू पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन की वजह से, एक्सटर्नल जो हम बाहर से लगाते हैं। तो जो ये टोटल नेट टॉर्क है आपका आई नेट है, जो दिस आई नेट इज ड्यू टू दी टॉर्क इंटरनल प्लस टॉर्क एक्सटर्नल। क्लियर। ये हम इसको पहले भी लिख के थे कि दो तरह के फोर्स होते हैं। अब हम पॉइंट में आना चाहते हैं, जो मेन पॉइंट आपका है कि इंटरनल टॉर्क किसके इक्वल होगा और एक्सटर्नल टॉर्क किसके इक्वल होगा। तो वी ऑल नो दैट कि जो टॉर्क होता है आपका वो होता है आर इंटू में एफ। तो जब मैं इंटरनल टॉर्क की बात करूंगा तो किसके इक्वल होगा, वो हो जाएगा आपका इंटरनल फोर्स। ठीक है। और जो मैं टॉर्क एक्सटर्नल की बात करूंगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा आर इंटू में एफ एक्सटर्नल। अब यहाँ पे कोई एक पार्टिकल तो है नहीं है, देयर द मैनी पार्टिकल। तो जो इंटरनल फोर्स है दैट एक्ट ऑन द मैनी पार्टिकल, तो यहाँ पे लगा दी मैंने समेशन आई अप्रोचेस 1 to n। ठीक है। और जो ये एफ इंटरनल है इसको लिख दिया मैंने एफ आई। सिमिलरली यहाँ पे मैंने भी क्या अप्लाई कर दिया, समेशन अप्लाई कर दिया, क्योंकि एक पार्टिकल होता तो ये लिखते हैं हम, लेकिन पार्टिकल तो एक से ज्यादा है, एन पार्टिकल है, तो यहाँ पे भी क्या लिख दिया मैंने, आई लिख दिया। ठीक है। तो ये आपकी टॉर्क की वैल्यू होगी इंटरनल और एक्सटर्नल।
अब हमने पढ़ा था कि जो दो पार्टिकल होते हैं कि इंटरनली अगर दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है, अगर मैं इन दोनों पार्टिकल की बात करता हूँ तो जितने इंटरनल फोर्स का ये पार्टिकल इसको अट्रैक्ट उतने के साथ ही इसको अट्रैक्ट करेगा। मींस दो पार्टिकल के बीच का जो इंटरनल फोर्स होता है दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। अब जो फिर इससे यहाँ से में क्लियर हो रहा है, क्या क्लियर हुआ कि जो इंटरनल टॉर्क है मींस जो इंटरनल टॉर्क जो होगा वो आपका जीरो होगा। जीरो क्यों होगा? क्योंकि दो पार्टिकल के बीच में अगर कोई फोर्स है तो वो जो फोर्स होगा दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो जो इंटरनल टॉर्क आपका क्या होगा, यहाँ से जीरो हो गया। तो अब सिर्फ टॉर्क कौन सा बचा आपके पास? अब यहाँ पे आपका टॉर्क बचेगा सिर्फ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से फोर्स लगेगा उसी को हम बोलेंगे एक्सटर्नल टॉर्क। ठीक है, तो अब मीन्स जो नेट टॉर्क किसी बॉडी के ऊपर लग रहा है तो दैट नेट टॉर्क इज इक्वल टू दी एक्सटर्नल टॉर्क। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब जो टॉर्क बाहर से लग रहा है। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू लिखना चाहता हूँ कि जो आपका समेशन आई नेट था, जो आपका जो आई नेट था, अब मैं लिखा था आई नेट किसके इक्वल था? दिस आई नेट इज इक्वल टू आई इंटरनल प्लस आई एक्सटर्नल। ठीक है, अब आई इंटरनल तो जीरो हो गया, इसका मतलब जो नेट टॉर्क था आपका, नेट टॉर्क आई नेट, तो ये जो आपका था ये किसके इक्वल आ गया? दैट इज टॉर्क जो कौन सा है आपका? एक्सटर्नल है। ठीक है, तो टो एक्सटर्नल के हम पहुंच गए। अब हम लिख के आए थे कि जो आई नेट था आपका क्लियर। अब जो आई नेट था वो इंटरनल एक्सटर्नल की वजह था और जो आई नेट की वैल्यू वो किसके इक्वल है? टो एक्सटर्नल की इक्वल है। तो यहाँ से जो आपका डीएल अपॉन डी टी आया वो किसके इक्वल आ गया? दिस डीएल अपॉन डी टी, दिस डीएल अपॉन डी टी इसके इक्वल आ गया। ये आपका गया टोर्क एक्सटर्नल के ऊपर, मीन्स इंटरनल वाला तो खत्म ही होगा। यहाँ पे आप इसके ऊपर वेक्टर फॉर्म भी डाल सकते हो। अब यहाँ से हम प्रूव करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्व एंगुलर मोमेंटम ये कहती है if we say that कि if we say that कि this टो एक्सटर्नल जो बाहर से टॉर्क लग रहा है अगर वो जीरो है, तो अगर बाहर से टॉर्क जीरो लग रहा है मीन्स यहाँ पे जो आपकी डी एल अपॉन डी टी है ये किसके इक्वल आ गया? जीरो के इक्वल आ गया। अब डी एल अपॉन डी टी मीन्स चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अगर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या? जीरो है। इसका मतलब अगर पहले टो वन थी और बाद में क्या थी? टो थी, टो टू थी। अगर सॉरी मैं यहाँ पे टो नहीं आएगा, दिस इज एल। अगर पहले एल वन थी बाद में क्या थी? एल टू थी। तो अगर मैं चेंज निकालता हूँ एल टू माइनस एल वन आएगा। अगर चेंज आपका जीरो है इसका मतलब इनकी वैल्यू क्या है? आपकी कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे? एल जो होगा वो कांस्टेंट होगा और यही आपका क्या था? दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मींस हमने प्रूव किया था कि द एंगुलर मोमेंटम सिस्टम रिमेन कंजर्व इफ नो टॉर्क एक्ट ऑन द सिस्टम। तो ये हमने यहाँ से प्रूव किया। ठीक है कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। हमें पता है कि डीएल अपॉन डी टी है वो टॉर्क के इक्वल होता है, लेकिन टॉर्क दो तरह का, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल जीरो के तो बचेगा किसका? एक्सटर्नल बचेगा आपका। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। अब नेक्स्ट आपका इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। अ रिजिड बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल टॉर्क डज नॉट चेंज इट्स मोशन। ठीक है, तो किसी भी बॉडी को, किसी भी रिजिड बॉडी को हम इक्विलिब्रियम में कहेंगे अगर उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स लगता है या उसके ऊपर बाहर से कोई टॉर्क लगता है, उस फोर्स या उस टॉर्क की वजह से अगर उसकी मोमेंट, उसके मोशन में कोई चेंज नहीं आता। अब हम जब चैप्टर स्टार्ट किया था हमने पढ़ा था रिजिड बॉडी के मोशन के बारे में। तो रिजिड बॉडी का दो तरह का मोशन होता है, एक होता है ट्रांसलेशन मोशन, एक होता है रोटेशन मोशन। तो वन बाय वन वी हैव डिस्कस एंड व्हाट वी आल्सो डिस्कस द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पहले अगर हम कह देते हैं कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, तो जो पहली कंडीशन हम किसे ट्रांसलेटरी मोशन के लिए बात करते हैं। अ रिजिड बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स और नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन डज नॉट चेंजेस ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशन मोशन। तो पहले हम किसकी बात करेंगे? हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात करेंगे। तो जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसके अंदर जो फोर्स आपका एक्सटर्नल फोर्स होगा वो सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा, वो लीनियरली मूव करेगा ऑब्जेक्ट आपका। ठीक है, तो उस केस में हम पहले यहाँ पे दो लाइन लिखनी पड़ेंगी। कहता है अ रिजिड बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम और अ रिजिड बॉडी सेड टू बी इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम इफ इट्स रिमेन एट रेस्ट और मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जो ट्रांसलेटरी की बात करते हैं तो फर्स्ट आपका जो इक्विलिब्रियम की बात करेंगे वो आपका ट्रांसलेशन मोशन के लिए इक्विलिब्रियम की बात करनी है हमने। तो कोई भी बॉडी ड्यूरिंग ट्रांसलेशन मोशन इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। कब? दो कंडीशन है, या तो हो गया वो रेस्ट में हो इफ इट इज इन द रेस्ट, और दूसरी होगी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। मींस ये पॉइंट आपका जो ये है ये कह रहा है आपको कि इफ अ बॉडी इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, की अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है उसको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, या तो वो रेस्ट में हो या मूव करे किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। अब हमने प्रूव करना है कि रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी का कंसेप्ट।
तो सबसे पहले हम कह देते हैं लेट F1 F2 Fb द एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द रिजिड बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। तो हमने क्या कहा कि कोई भी रिजिड बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये रिजिड बॉडी है, तो दिस रिजिड बॉडी इज मेड ऑफ लार्ज नंबर पार्टिकल, और इन सभी की वजह से इसका जो मास m है, तो इस रिजिड बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है बाहर से, मैनी फोर्स आर एक्टिंग, तो वो फोर्स कौन से F1 F2 F3 अप टू सोन तक एक्ट कर रहे हैं। तो जो इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहे हैं, मैनी फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, v से ये मूव कर रही है। तो इफ वी से दैट कि द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इज F1 प्लस F2 प्लस F3 दैट इज अप टू सो ऑन। क्लियर। तो अगर ये सारे के सारे फोर्स लग रहे हैं, तो ये जितने फोर्स हैं बाहर से लग रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, दिस इज इक्वल टू दी वी कैन राइट हेयर समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, की जितने भी बाहर से फोर्स है उसको हम एक्सटर्नल फोर्स कह सकते हैं। अब जो समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है, कि जो बाहर से फोर्स, समेशन मतलब इन सबका प्लस, तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि द एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। लीनियर मोमेंटम की बात करें, क्योंकि अब बॉडी है जो वो आगे की तरफ जा रही है, ना कि सर्कुलर पाथ में जा रही है। ठीक है, तो अब यहां से हमारी जो वैल्यू आई तो अगर हम एफ एक्सटर्नल की बात करते हैं, इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू दैट इज डी बाई डी टी। अब यहाँ पे जो हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर दिया मैंने एम बी मीन मास इंटू वेलोसिटी, पुट द वैल्यू पी। तो पी की मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ से। अब वी ऑल नो दैट कि जो मास है किसी बॉडी का वो तो कांस्टेंट होता है, सिर्फ चेंज करेगी वेलोसिटी चेंज होगी। तो अगर मैं यहाँ से लिखना चाहता हूँ तो एम बाहर आ गया, तो क्या आ गया अपना डी वी अपॉन डी टी आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम कंडीशन के ऊपर लेके आएंगे। तो पहली कंडीशन क्या थी आपकी, मीन्स द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ वी इज कांस्टेंट। बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी, अगर वी कांस्टेंट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ, अगर आपका dv बाई डी टी किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। अगर dv बाई डी टी किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, मीन्स इफ dv बाई डी टी इक्वल टू जीरो मीन्स चेंज इन वेलोसिटी आपका क्या, जीरो है। अगर वेलोसिटी में चेंज जीरो, इसका मतलब जो v आपका है दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर dv बाई डी टी इक्वल टू जीरो होगा, इसका मतलब पूरी पूरी टर्म क्या होगी, जीरो होगी। अगर पूरी पूरी टर्म होगी, तो जो आपका f एक्सटर्नल था वो किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इन दिस फर्स्ट कंडीशन हमने क्या देखा, अ बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है। कब, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स, अगर सभी एक्सटर्नल फोर्स का सम क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है कुछ नहीं, पहले हमने इसको जीरो मानना था, अगले केस में एफ एक्सटर्नल, अगले में एफ एक्सटर्नल को जीरो मान लेंगे, तो आपका जो वी है वो जीरो या कांस्टेंट आएगा, उसको हम देख रहे हैं नेक्स्ट। देखो इसके बाद आगे क्या कहता है। अब दूसरी कंडीशन पे चलते हैं हमें। अब हमें पता है कि जो एफ एक्सटर्नल है दैट इज एफ एक्सटर्नल, ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे कह देता हूं कि अगर आपका एफ एक्सटर्नल ही जीरो है, मीन्स इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो, तो अगर एफ एक्सटर्नल जीरो, इसका मतलब जो डीपी बाई डी टी है वो आपका क्या होगा, जीरो। अब डीपी बाई डी टी जीरो, इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम जीरो। अगर चेंज इन मोमेंटम में जीरो है, क्लियर, तो मीन्स डीपी अपॉन डी टी मीन्स चेंज इन मोमेंटम। इफ चेंज इन मोमेंटम जीरो दैट मीन्स दैट कि जो पी आपका है वो आपका क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो ये दो कंडीशन आ गई ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है, तो ये ऊपर तक यहाँ से एफ एक्सटर्नल, जिसमें हमने जीरो, एक में हमने एफ एक्सटर्नल को जीरो प्रूव किया था और एक में हम उसको जीरो मान के चले थे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था, रिजिड बॉडी सेट टू बी इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम इफ इट्स टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, और दूसरा इफ इट्स लीनियर मोमेंटम डज नॉट चेंजेस विद टाइम, अगर इसकी मोमेंटम टाइम के साथ चेंज नहीं करेगी तो बॉडी किस में होगी, दैट इज इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। तो ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। अगर हम करते हैं रोटेशन की बात, ठीक है, तो रोटेशन में क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, जहां पे एफ है वहां पे टॉर्क आ जाएगा। क्लियर, बाकी सारा आपने वही करना है। तो हम रोटेशनल की बात करते हैं। तो अ रिजिड बॉडी सेट टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ द बॉडी डज नॉट रोटेट और रोटेट विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। वही पहली वाली बात है, या तो बॉडी किस में होगी, रेस्ट में हो, रेस्ट में है तो इसका मतलब रोटेट नहीं करेगी, या दूसरा क्या हो उसकी, पहले कौन सी वेलोसिटी थी, यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। मीन्स या तो वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए एंगुलर, ओमेगा, या ओमेगा आपका कांस्टेंट होना चाहिए। ये दो कंडीशन है रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि अगर बॉडी आपकी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रोटेशन कर रही है, तो वी से दैट कि देयर आर द मेनी पार्टिकल ऑफ द बॉडी, सो द डिफरेंट टॉर्क एक्ट ऑन द बॉडी। तो जो टॉर्क एक्ट करिए वो आपकी क्या, टो वन है, एक के ऊपर टो टू है, दूसरे टो थ्री, अप टू कहाँ तक, सो वन तक एक्ट कर रही है। तो जो सारी टॉर्क है वो क्या, समेशन किसका, सभी टॉर्क जो कहाँ से एक्ट कर रही है, बाहर से एक्ट कर रही है। तो ये हम इसको लेके चले गए। अभी हम पीछे प्रूव करके आए कि जो टॉर्क आपका होता है, जैसे डी एल अपॉन डी टी था जो आपका, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है टॉर्क के इक्वल। अब ये टॉर्क है यहाँ पे समेशन ऑफ सभी एक्सटर्नल टॉर्क का। ठीक, अब हम पहली कंडीशन लेके चलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि अगर एल आपका है कांस्टेंट, ठीक है, इफ एल इज कांस्टेंट, तो इफ एल इज कांस्टेंट, इफ एल इज योर कांस्टेंट, अगर एल आपका कांस्टेंट है मींस मोमेंटम आपकी, एंगुलर मोमेंटम आपकी अगर कांस्टेंट, जैसे वहां पे लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट थी,
अगर यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम आपकी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये अगर कांस्टेंट है तो जिसके अंदर चेंज जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो अगर एल कांस्टेंट है मीन्स यहाँ से क्या होगा कि डी एल बाई डी टी की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। अगर डी एल बाई डी टी की वैल्यू आपकी जीरो आएगी, इसका मतलब जो टोटल टॉर्क एक्ट कर रहा था दैट कम्स आउट टू बी जीरो, मीन्स टोटल टॉर्क है एक्ट जीरो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद दूसरी कंडीशन लेके चलते हैं। दूसरी कंडीशन आपकी क्या होगी कि हमने टोटल टॉर्क को जीरो कर दिया। ठीक है, तो ये आपका था इफ बॉडी, अगर आपकी क्या होगी, बॉडी होगी, अगर उसके ऊपर उसकी मोमेंटम अगर क्या है कांस्टेंट है तो टॉर्क उसके ऊपर जीरो लगेगा। अब हम दूसरे में क्या मोमेंटम को लेके चलेंगे। ठीक है, मीन्स हम पहले हमने इसको कांस्टेंट मानना था तो टॉर्क जीरो आया था। अब हम आगे क्या करेंगे, टॉर्क को हम क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे और मोमेंटम को कांस्टेंट प्रूव करेंगे। वो देखो कैसे आएगा, यहाँ पे कर देते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम क्या कह देते हैं यहाँ पे, इफ वी से दैट, वी नो दैट कि जो टॉर्क है आपका दैट इज टॉर्क एक्सटर्नल, बाहर से जो एक्ट कर रहा है वो किसके इक्वल है, दैट इज डी एल अपॉन डी टी के इक्वल है। तो इफ वी से दैट कि अगर बाहर से टॉर्क ही एक्ट नहीं करा मीन्स टॉर्क की वैल्यू क्या जीरो है, तो मीन्स जो डी एल अपॉन डी टी है वो किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। अगर डी एल अपॉन डी टी जीरो मीन्स एंगुलर मोमेंटम में चेंज क्या है, जीरो है, मीन्स एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं हो रहा। अगर एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं हो रहा इसका मतलब जो एल आपका है दैट एल इज योर कांस्टेंट। तो ये था आपका कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड कंसेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। इसके बाद आपका आता है कपल। कपल एक छोटा सा टॉपिक है, उसके अंदर देखते हैं क्या होगा। कपल का मीनिंग होता है इफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड बट हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन कौन सा कपल, कि कोई भी बॉडी है उसके दो जगह पे फोर्स लगता है तो उसको हम कपल कहेंगे। ठीक है, मीन्स टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करें बट उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। तो कपल के लिए मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर एक यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है। तो टू फोर्स एक्टिंग, एक ऊपर की तरफ एक यहाँ पे एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ। तो अब ये F1 है और ये आपका क्या F2 है। अब जो F1 और F2 है दैट आर इक्वल इन टू इक्वल एंड अपोजिट, मींस जो दोनों फोर्स हैं वो इक्वल हैं और किस में लग रहे हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। बट जो उनका लाइन ऑफ एक्शन होगा वो डिफरेंट होगा, मींस दोनों के दोनों वो अलग अलग जगह पे एक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे कपल। तो दिस इज नोन एज कपल। तो ये छोटी सी डेफिनेशन थी आपकी कपल। अब कपल का यूज कहां पे होता है, कपल एक्ट ऑन अ बॉडी इज शोन इन द फिगर, ये हमने दिखा दिया। व्हेन अ कपल एक्ट ऑन अ बॉडी द बॉडी इज इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम बट नोट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, कि जो बॉडी होगी वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में तो होगी लेकिन वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। मीन सिंपल सी बात है कि जब इस बॉडी के ऊपर दो फोर्स लगेंगे, दो फोर्स कैसे, एक नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है एक ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक है, मीन्स जब दो फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेंगे एक ऊपर की तरफ, मीन्स ये बॉडी ना तो ऊपर जाएगी ना बॉडी कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, लेकिन ये क्या करेगा, ये बॉडी क्या करेगी, घूमेगी। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं, मीन्स जब किसी बॉडी के ऊपर कपल होगा तो कपल के अंदर जो बॉडी है दैट इज इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में होगी लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई बॉडी है कि ये और एक ही है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर एक यहाँ पे फोर्स एक्ट करा दिया कि यहाँ पे फोर्स एक्ट करा दिया। जब इस बॉडी के ऊपर हम फोर्स एक्ट करवा रहे हैं, एक नीचे की तरफ है, दोनों दोनों फोर्स अगर F1 है और ये F2 है, तो आपको पता है कि जब दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है तो बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी। अब बॉडी मूव करेगी नीचे की तरफ, तो इस केस में जो बॉडी है आपकी रोटेट तो नहीं कर रही। अगर बॉडी रोटेट नहीं कर रही इसका मतलब ये किस में है, दैट इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, लेकिन दैट इज नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। लेकिन जब मैंने एक ये बॉडी ली, इस बॉडी के ऊपर मैंने एक फोर्स यहाँ पे एक्ट करवा दिया, एक बॉडी पे यहाँ फोर्स एक्ट करा दिया। ठीक है, ये इसका था पॉइंट वो। अब जब इसके ऊपर ये फोर्स एक्ट करेगा तो दिस बॉडी स्टार्ट रोटेटिंग, ये बॉडी ऐसे घूमना शुरू कर देगी, मींस दैट बॉडी स्टार्ट रोटेटिंग। अब बॉडी रोटेट कर रही है तो इसका मतलब बॉडी इज नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, लेकिन बॉडी अपनी जगह से नहीं हिली, इसका मतलब ये जो बॉडी है ये आपकी किसमें, दैट इज इन दी, दिस बॉडी इज इन दी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो ये दो तरह से आपका इक्विलिब्रियम, कि कब इक्विलिब्रियम होगा कब इक्विलिब्रियम नहीं, मींस जब कोई बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा दो अपोजिट जगह पे इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, तो बॉडी रोटेट करेगी। तो अगर बॉडी रोटेट करेगी तो उसको बोल लेंगे रोटेशनल मोशन। तो अगर बॉडी मोशन में आ गई, बॉडी ने घूमना शुरू कर दिया, इसका मतलब वो रेस्ट में नहीं रही। अगर वो रेस्ट में नहीं रही इसका मतलब उस बॉडी का जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम था वो खत्म हो गया। लेकिन जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करवाते हैं जो दोनों ही सेम डायरेक्शन में, तो इस केस में क्या होगा, या तो बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी या बॉडी नीचे की तरफ जाएगी। मीन्स अगर हम कह देते हैं कि दिस इज द ए पोजीशन, कि ये बॉडी की ए पोजीशन थी, तो जब इसके ऊपर हमने फोर्स एक्ट करवाया तो ये बॉडी आपकी यहाँ पे आ गई, तो वो ए से बी चलेगी। मीन्स बॉडी ने मूव किया, मीन्स नीचे की तरफ मूव किया। तो पहले अगर बॉडी इसी जगह पे फिक्स रहती और अगर मूव ना करती तब हम कह देते कि ये बॉडी किसमें है, दैट इज इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। ठीक है, लेकिन अगर ये बॉडी अपनी जगह से हिल गई तो इसका जो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम था वो खत्म हो गया।
अब ये बॉडी नीचे की तरफ है लेकिन रोटेट तो नहीं किया। अगर इस बॉडी ने रोटेट नहीं किया इसका मतलब ये है कि ये बॉडी आपकी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन जब हमने दो इक्वलेंट फोर्स अपोजिट फोर्स एक्ट करवाए दो अलग अलग जगह पे, तो इस केस में बॉडी ना तो नीचे गई ना ऊपर गई, लेकिन बॉडी स्टार्ट रोटेटिंग, तो मीन्स इन दैट केस बॉडी इज इन द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बट नॉट इन द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब आपने देखना है कहाँ कहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम आपने आप आज तक देखा है। तो बेटा जब भी हम किसी भी टैप को ऑन करते हैं, तो ये टैप होती है आपकी, तो टैप को हम दो जगह से पकड़ते हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो इसको हम रोटेट करवाते हैं, तो ये इधर जाती है और ये इधर जाती है। तो इसको जो रोटेट करवाते हैं तो घूम रही है, इसका मतलब जो कपल एक्ट कर रहा है उसके ऊपर। सिमिलरली जब हम किसी भी लिड को ओपन करते हैं, किसी बोतल के ढक्कन को ओपन करते हैं, तो उसको भी हम ऐसे ही रोटेट करते हैं लाइक दिस। तो इसके अंदर क्या है कि जो एक ये थंब का और ये फिंगर का जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो दो अलग अलग जगह पे एक्ट कर, लेकिन दोनों का डायरेक्शन ये देखो, थंब पीछे की तरफ और उंगली कहाँ जा रही है, आगे की तरफ जा रही है। तो इन दैट वे इसके ऊपर कपल एक्ट कर रहा है। तो कपल जब किसी के ऊपर एक्ट करेगा तो उस टाइम जो उसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम है वो टूट जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो उसका कौन सा इक्विलिब्रियम, दैट इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी रहेगी आपकी। तो ये आपका था रोटेशनल इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, और दूसरा कपल के बारे में हमने बात की है। तो जो नेक्स्ट आपके टॉपिक रहेंगे वो आपका रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपका टॉपिक है ये नया है आपके लिए, इससे पहले आपने कभी नहीं पढ़ा है आपका। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बेटा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज। तो अब हमने यहाँ पे किसकी बात करनी है, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करनी है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उन बॉडीज का होगा जो बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो दैट बॉडी हैविंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस करना है। तो मीन्स द बॉडी विच इज रोटेटिंग द सर्कुलर पाथ अराउंड अ फिक्स और अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन और अराउंड अ फिक्स पॉइंट, तो दैट इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोटेड बाय आई, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। अब इसको हमने समझना कैसे वो देखते हैं भाई। तो चलो अब देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या। मैंने एक डायग्राम बनाया, उस डायग्राम को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ बॉडी, दिस इज अ बॉडी विच कंसिस्ट एन नंबर ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मैंने यहाँ पे ले लिया आपका M1 M2 M3 M4 अप टू M है कि जो यहाँ पे हर एक पहला पार्टिकल है उसका मास M1 है। इन दैट वे देयर द n पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल आर हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम द, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, की जो ये बॉडी है इसके चारों तरफ घूम रही है ये। क्लियर। सो जो पहला पार्टिकल उसका डिस्टेंस R1 है, दूसरे का क्या R2 है, ऐसे ही जो n का है वो Rn है। क्लियर। अब व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता देता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्केयर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर कोई पार्टिकल उसका मास क्या है m है, उसका हमने प्रोडक्ट करना है, अगर उसका डिस्टेंस कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से r, उसका स्केयर। तो जो m r स्केयर ये आपका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया is the sum of the product of the masses of the particle and square of their distance from the axis of rotation। तो ये आपका क्योंकि हर एक बॉडी है वो किससे बनी है, दिट इज मेड वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल से बनी हुई है। अगर बहुत सारे पार्टिकल से बनी हुई है तो उन सभी पार्टिकल के मास का, अगर मैं ये कह देता हूं कि इफ टोटल इज आई, ये अगर आपका आई है तो ये टोटल इस पूरी बॉडी का, ये बॉडी कितने पार्टिकल से बनी, एन पार्टिकल से बनी है। तो जो पहला पार्टिकल है उसका मोमेंट होने चाहिए I1 है, दूसरे का क्या है I2 है, तीसरा क्या आपका I3 और अब n। तो अगर मैं सबकी वैल्यू लिखता हूँ व्हाट इज आई, तो आई मैंने लिखा था m इंटू में आर स्केयर। तो जो पहला पार्टिकल उसका क्या होगा M1 R1 का स्केयर, दूसरा क्या होगा आपका दैट इज M2 R2 स्केयर, तीसरा क्या होगा आपका M3 R3 स्केयर, अप टू कहां तक प्लस Mn Rn स्केयर। तो एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये सम है किसका, सभी पार्टिकल के मास का एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कि अगर किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस r है तो उसका R1 स्केयर होगा, अगर R2 है तो R2 स्केयर। अब देखो ये अगर हम इसको लिखते हैं समेशन की फॉर्म में, सो इफ यू राइट इन द समेशन, दिस इज I1 to n लिख दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया मैंने Mi प्लस Ri का स्केयर। सो दिस इज योर नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट निकालना चाहता हूँ तो यूनिट आप निकाल सकते हो कैसे, कि जो मास है उसकी केजी होगी और जो आर है वो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की मीटर होगी, लेकिन यहाँ पे स्केयर है तो मीटर स्केयर आ जाएगा। तो यूनिट उसकी आ जाएंगी आपकी द यूनिट ऑफ आई की जो यूनिट होंगी। अब वही बात है, अगर हम क्या मान ले इस बॉडी को हम क्या मान लेते हैं एज अ होल बॉडी मान लिया। मैंने क्या कह दिया, इस पूरी बॉडी का जो मास है यहाँ पे कंसंट्रेट करता है, तो इसका मास मैंने कह दिया दिस इज कैपिटल एम। और जो इस बॉडी का ये डिस्टेंस है जो यहाँ से, ये आपका कैपिटल आर है।
मीन्स ये मैंने पूरी एक बॉडी मान ली। अब इसकी जो आई होगी उसको आई को हम लिख देंगे एम आर स्क्वायर। तो मीन्स जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्चुअल में इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्केयर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब ये काफी सारे हैं तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सम। हमें क्या लिखना पड़ेगा, सम। द सम ऑफ द पार्टिकल, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द पार्टिकल एंड स्केयर ऑफ द देयर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आता है फैक्टर इफेक्टिंग एम आई। तो बेटा अब आगे जो इसको आई की जगह सीधा हम यहाँ पे एम आई लिखा करेंगे। एम आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करें, सबसे पहले देखो किस किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, मास के ऊपर डिपेंड करे तो पहला पॉइंट तो मास आएगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, द ओरिएंटेशन एंड द पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी एंड शेप ऑफ द बॉडी। तो ये कुछ फैक्टर जिसके ऊपर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो दो तो सिंपल ही है, एक तो मास के ऊपर डिपेंड करेगा और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, दूसरा बॉडी की शेप पे भी डिपेंड करेगा, और तीसरा आपका बॉडी की ओरिएंटेशन और बॉडी की पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करेगा। तो ये तो आपका क्या था, दिस इज फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ पार्टिकल सिस्टम। अब अगर हम कह देते हैं अगर कोई आपकी रिजिड बॉडी है, तो अभी मैं लिख के आया कि जो एम आई था आपका दैट इज समेशन ऑफ आई अप्रोचेज 1 to n दैट इज एम आई आर आई का स्केयर। तो ये तो था किसी पार्टिकल के लिए। अब हमने कल लिखा था, हमने क्या बोला था, हमने कि जब हम कोई रिजिड बॉडी की फॉर्म में जाते हैं तो वहां पे पार्टिकल नहीं होते, पार्टिकल इतने क्लोज होते हैं, दे बिकम एलिमेंट्स। क्या बन जाते हैं आपके, वो एलिमेंट बन जाते हैं। तो अगर वहां पे कोई एलिमेंट, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये आपका कोई बॉडी थी, क्लियर, ये इसके अराउंड घूम रही थी, तो हमने क्या कहा कि ये बहुत सारे पार्टिकल थे, ये इकट्ठा होकर क्या बन गए, एलिमेंट बन गए। तो अगर ये एलिमेंट बन गए, इसका मास कितना, डीएम है। ठीक है, इसका मास क्या है, डीएम है, और इस एलिमेंट का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है। तो जो आपका एम आई बन जाएगा, दिस एम आई कैन बी रिटन एज, जैसे हमने कल लिखा था वही पहले की तरह। तो जिस समेशन जो होगा, दिस समेशन कैन बी चेंज इनटू इंटीग्रेशन एंड इट बिकम डीएम इनटू में आर स्क्वायर। क्लियर, सो दिस इज फॉर अ रिजिड बॉडी। क्लियर, रिजिड बॉडी में क्या था, द पार्टिकल जो इन केस ऑफ रिजिड बॉडी द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली, द पार्टिकल द बॉडी आर नॉट सेपरेटेड एंड हेंस दे आर कंसीडर्ड एज एलिमेंट। तो अगर हम यहाँ पे फिर से अगर इसके कंसेप्ट को लेके आना चाहते हैं, हमें पता है कि जो इसका जो वॉल्यूम है वो डीवी होगा। ठीक है, और इसकी जो डेंसिटी है वो हमने रो ले ली, तो हमें पता है जो डेंसिटी होती है दैट इज मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर मैं मास निकालना चाहता हूँ तो डीएम की वैल्यू आपकी आ जाएगी क्या, रो इंटू में डीवी। ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ डीएम वी कैन राइट हियर डीवी आल्सो। तो ये आपका क्या बन जाएगा यहाँ से, दिस बिकम हेयर। तो इसको जो मैं लिखना चाहता हूँ तो ये बन जाएगा रो डीएम इंटू में आर स्क्वायर। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। ठीक है, हम रिजिड बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐसे लिखते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी डज नॉट हैव अ सिंगल वैल्यू एज बॉडी हैज नंबर ऑफ एक्सिस रोटेशन। कि क्योंकि बॉडी का कोई एक फिक्स एक्सिस रोटेशन नहीं है, उसको किसी भी एक्सिस रोटेशन के अराउंड हम घुमा सकते हैं, उसकी कोई फिक्स वैल्यू। तो ये हमारा टॉपिक था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज ये हमने यहीं तक करेंगे। इसके जो थर्ड वीडियो आपको मिलेगी, इन थर्ड वीडियो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। सो विद दिस, इसमें से आपके कुछ टॉपिक हैं जो इस साल के लिए डिलीटेड हो चुके हैं, वो हम आगे आएंगे, जब आगे हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो इसको आपने देखना है, वीडियो को पूरा देखने के बाद इसके नोट्स प्रिपेयर कर लेने। और बेटा नोट्स आप लोग ने मेरे पास सेंड करने हैं ताकि उनको मैं एक बार चेक कर सकूं, और उसमें कोई करेक्शन है तो उसको करेक्शन करवा सके। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी टॉपिक यू विल मैसेज मी पर्सनली ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जो आपको मिलेगी मंडे को। तो टुडे यू विल कंप्लीट इट, दिस इज ओवर फॉर टुडे, थैंक यू।